Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Dr. Ayushi, and today we are starting with the very first chapter of class 11, and that is Living World. So let me just first make one thing very much clear to you that we have completed with NEET 2026. Now we have the students which are in 11th class, or they have just given their boards, or they have just given a trial to the NEET examination in 2026. So they want to focus on 2027. So let's just start that journey from here only, from this chapter only. And the students in which have just which have just taken admission in class 11th only, and they have to do this chapter for their school purpose. So this is for them also. Okay, so it comprises all the detailings which may come to you in your school examination or for your NEET as well. Okay, so let's, without wasting time, let's start with the chapter. Okay, so by if I want to introduce this chapter to you, so ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है. इसमें हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेसिकली जो आप आगे जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे स्पेशली इस यूनिट में, उन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कुछ भी हो, उन सब के लिए हम किस तरह से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मोर इम्पोर्टेंटली क्यों कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, किसने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया, हाउ इट गोज फर्दर एंड एवरीथिंग. We're gonna deal with this. Okay, we're gonna deal with all these things in this chapter only. Let's start with the very first thing in this chapter, and that is biodiversity. So biodiversity, if I want to split this term, right, it is divided into two smaller fragments, and that is bio. It, this fragment is in our subject name also, and that is biology. So bio means living, and diversity, it means variety. So when it comes to biodiversity, we are dealing with the varieties of living organisms. We are dealing with varieties of different categories of living organisms. Okay. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए, तीन स्टेटमेंट्स हैं विच आर फ्रॉम योर एनसीईआरटी ओनली. एंड प्लीज आई my thing is to follow your NCERT only. NCERT, your preparation for NEET or for your preparation for your school exams as well is nothing without NCERT. So my notes, my lectures, everything is from NCERT only. NCERT is very important for biology. Okay, so the very first statement from your NCERT is the number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 मिलियन. दैट मीन्स ये बोल रहा है कि जितनी स्पीशीज आज की डेट में हमें पता है ना, वो रेंज करती है फ्रॉम 1.7 टू 1.8 मिलियंस. अब ये पता होने से, नॉन स्पीशीज से क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है बेटा कि यहाँ पे और भी बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जिनको अभी सिर्फ हमने रिकॉग्नाइज किया है, मतलब सिर्फ अभी उनको जानने की हम कोशिश कर रहे हैं, अभी पूरी तरह से उनका आइडेंटिफिकेशन, उनका नॉमेनक्लेचर नहीं हुआ है. लेकिन ये जो रेंज है 1.7 टू 1.8 मिलियन, ये रेंज उन स्पीशीज की रेंज है जिनको हमने कैरेक्टराइजेशन भी कर लिया है, जिनका आइडेंटिफिकेशन भी हो गया है, जिनको हमने क्लासिफाई भी कर दिया है और उनको नेम भी दे दिया, नॉमेनक्लेचर भी उनका कर दिया है. राइट. सो दिस इज दैट रेंज ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो हमें हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है, एंड दे आर नोन टू अस. ओके, that this is that range. Okay, but इसके अलावा और भी बहुत सारी स्पीशीज हैं, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिन्हें हम अभी तक नहीं जान पाए हैं. ओके, the second statement says that there are millions of plants and animals in the world, and the local name vary from one place to another. That creates confusion, and that is so obvious. अगर मैं आपसे कोई एक सिंपल सी वेजिटेबल की छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक सिंपल वेजिटेबल है, अगर मैं अलग अलग जगहों पे जाऊं, अलग अलग स्टेट्स में जाऊं, स्टेट्स के भी अंदर आप अलग अलग रीजन्स में चले जाइए, वहां पे एक एक वेजिटेबल के अलग अलग नाम है. ठीक है, एक वेजिटेबल के अलग अलग नाम है, एक चीज, एक कोई भी एक चीज के अलग अलग नाम से वो उसको बोलते हैं. देयर लैंग्वेज इज डिफरेंट, राइट. सो यहाँ पे अगर मुझे सबको, एक मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, किसी एक चीज से मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया और मुझे वो पब्लिश करना है, मुझे वो सबके सामने लेकर आना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं एक कुछ ऐसे टर्म्स वहां पे यूज करूंगी जो सबको समझ आ पाए. राइट. अगर मैं अपने लोकल लैंग्वेज में वो चीज लिख दूंगी, पब्लिश कर दूंगी कोई भी अपना
अपनी कोई भी थ्योरी या अपनी कोई भी सिंपल लेट्स टेक अ ब्लॉग और व्हाटएवर। सो अगर मैं अपनी लोकल लैंग्वेज में उसको इंट्रोड्यूस कर दूंगी आपके सामने, तो सिर्फ वही लोग उसको समझ पाएंगे जो मेरी लोकल लैंग्वेज से, मतलब जिनका जिनका लोकल लैंग्वेज सेम है मेरी तरह। बट बाकी लोगों का क्या? तो रीच उसकी क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई अगर हम लोकल नेम्स के बेसिस पे कॉन्वर्सेशन करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तो वो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सब लोग उसको नहीं समझ पाएंगे और उसकी रीच भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। सो हमने क्या किया, इस चीज को ठीक करने के लिए हमने एक सिस्टम निकाला, एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम निकाला, जिसमें हम बायोलॉजिकल नेम्स प्रोवाइड करने लगे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। और हमने ये चीज सोची कि अगर हम एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक ही बायोलॉजिकल नेम देंगे based on the characters that it the characters they have, okay, that they shows their physiological characters, their morphological characters, everything. So उसके बेसिस पे हमने उसे नॉमेनक्लेचर करना स्टार्ट कर दिया। नॉमेनक्लेचर इज नथिंग, इट इज जस्ट द नामकरण, ओके। सिर्फ नामकरण ही है ये प्रोसेस। सो ये पूरा वर्ल्ड वाइड उस एक ही नेम से उस चीज को हम जाने जाएंगे। जैसे ह्यूमन बींग्स, होमोसैपियंस, एवरीवन नोज दिस, लाइक होमोसैपियंस इज अ बायोलॉजिकल टर्म। सो अगर मुझे एक साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट को किसी दूसरे कंट्री के साइंटिस्ट के साथ में बात करनी है रिलेटेड टू एनीथिंग, related to any experiment on that one particular species, तो हम क्या करेंगे? हम biological words यूज करेंगे। Okay, so this is the criteria, this is the reason why we need to follow nomenclature. Let's move forward. Now let's come to the nomenclature itself. What is nomenclature? As it is written here, that nomenclature or naming is the it's only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to, and that is known as identification. That means किसी भी स्पीशीज को नेम देने से पहले हमें क्या करना है? उसका आइडेंटिफिकेशन करना है, उसके कैरेक्टर्स को समझना है, वो किन चीजों को शो करता है, किन कैरेक्टर्स को शो करता है, फिर उसके हिसाब से हम उसको नाम देंगे। ओके। और इसी चीज के लिए साइंटिस्ट ने अलग अलग कैटेगरीज के लिए, अलग अलग लिविंग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग रूल्स निकाले, अलग अलग कोड्स निकाले। सो अगर हम प्लांट्स की बात करें, अगर हमें प्लांट, कोई एक प्लांट है और उसकी नेमिंग हमें करनी है, तो उसके लिए जो कोड्स यूज करते हैं, दैट आर this ICBN consists those codes which are used for plant nomenclature. ICBN, that is International Code for Botanical Nomenclature. This is very important for your MCQ, for your one marker question. ओके बेटा, सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर स्कूल पर्पस एंड फॉर योर नीड एज वेल। अभी एनडीए इतना इतना सिंपल, इतना लड्डू क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा ऑफ कोर्स, बट स्टेटमेंट बेस्ड आ सकता है। ओके, दे कैन गिव यू स्टेटमेंट और फिर वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। बिकॉज आजकल नया ट्रेंड चला है ना कि कुछ साल, मतलब अभी कुछ रिसेंट ईयर्स से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। इस साल भी बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए, लेंदी पेपर आया है। So to make it lengthy, they can make statements out of this. That's why I'm telling you this. Ki this is important. Okay. ICBN for plant or botanical nomenclature, ICZN for animal or zoological nomenclature. And when it comes to bacteria, so ICNB, International Code of Nomenclature of Bacteria. Okay. All these three, they are very important. जिसके चांद सितारे तुम्हें इस पे बनाने बना सकते हो। Okay. Just to make yourself that it is important. Okay. Then let's start with the nomenclature process itself. We are calling this namkaran or this nomenclature as binomial nomenclature. That means by means two. That means two components आ जाए। अगर मैं अपनी बात करूं, हम नॉर्मली अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, सो हमारे सबके नेम में दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक हमारा खुद का स्पेसिफिक नेम और दूसरा हमारा द सरनेम, जो हमारी फैमिली से जनरेशन से चलता आ रहा है, टू विच कम्युनिटी वी बिलोंग्स टू। ओके, सो एक हमारा स्पेसिफिक हो गया और एक हमारा जेनरिक नेम हो गया। दैट मीन्स दैट हम किस जनरेशन, हमारी जनरेशन सबका सेम है, कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं। सो यही क्राइटेरिया हम यूज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को नेम करने में। ओके, सो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज द फॉर्मल सिस्टम ऑफ नेमिंग स्पीशीज of living things each a name by giving each a name composed of two parts.
and one part is the generic name and the other one is specific epithet. So specific epithet is the species, okay, as it's like thoda bahut to idea hame rehta hai species, okay, the smallest category. That means the specific name that we have. Say for an example, if I am Ayushi, that is the specific name that belongs to me, and my surname is the generic name, that's a bigger community or that's the bigger category to which I belong. Okay, that is how it goes. And these again a very important thing, the name of the books. Okay, Carolus Linnaeus, a very important scientist. Carolus Linnaeus का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा, they have he had worked so much for us to make things easier for us in biology. Right. So this system, this binomial nomenclature system was also popularized by Carolus Linnaeus. He made us understand this nomenclature process, binomial nomenclature process, by writing two books, one for the animal and one for the plants. Okay. So सबसे पहली बुक इनकी स्पीशीज प्लांटेरियम 1753 में इन्होंने पब्लिश की थी और इसमें सारे प्लांट्स के बारे में इन्होंने बताया, उनके कैरेक्टर्स, हाउ द प्रोसेस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज डन, क्या उनका नोमेनक्लेचर बनकर आया, दैट इज। एंड इन 1753 उन्होंने एक और बुक पब्लिश किया, दैट इज सिस्टमा नेचुरे एंड दैट इज फॉर एनिमल्स। ओके, द नेम ऑफ दीज टू बुक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन चांद से तारे बना सकते हैं, ठीक है। सो स्पीशीज प्लांटेरियम इज फॉर प्लांट्स, सिस्टमा नेचुरे इज फॉर एनिमल्स। ओके, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको नाम याद रखना है। आप वो नाम से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है एमसीक्यू में, आपको ईयर से भी पूछ सकता है, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, द रीसेंट ट्रेंड। Okay, the statement based question that the species Plantarum published in 1753 by Carolus Linnaeus, which consists plants, all the plant categories and their nomenclature. Yes, this is right. और थोड़ा सा उसने ऑल्ट्रेशन कर दिया तो फिर वो गलत हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से आपको ये याद रखना है। ओके, रूल्स फॉर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर। आप बोलोगे मैम सभी कुछ इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, देखो अगर मैं एमसीक्यू और 1 मार्क क्वेश्चन की बात करूं तो वो किस लाइन से किस लाइन को उठा के आपको पूरा स्टेटमेंट दे दे वो हमें नहीं पता, ठीक है। सो इसलिए पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बट अगर मैं स्पेशली आपके सब्जेक्टिव पार्ट की बात करूं जो 11th क्लास में आएगा, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ ऑल द टीचर्स, बहुत बार पूछते हैं। प्लस अगर मैं नीट की बात करूं तो इस चैप्टर से ज्यादातर अगर मैं देखूं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस इस टॉपिक से हैं। ओके, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर इस इन सारे रूल्स में अगर थोड़ा सा भी चेंज कर दिया तो फिर वो गलत हो जाएंगे। दैट्स व्हाई वी ऑल दीज 4 स्टेटमेंट्स, ऑल दीज 4 रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस। Yeah. So the very first is biological names are generally in Latin and written in italics. They are generally in Latin and written in italics. That means irrespective of their origin, किसी भी origin से वो नाम आया हो, वो organism आया हो, but उसका जो हम नाम रखेंगे वो लैटिन लैंग्वेज से डिराइव करके रखेंगे। ओके, उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पे, और उसको जब लिखने की बात आएगी तो वो इटैलिक्स में लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा इटैलिक्स में? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इटैलिक्स में हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम ये शो कर सके, ये रिप्रेजेंट कर सके कि ये वर्ड जो है it has come from Latin origin, or it has come from Latin language, or it has been Latinized, right? That means, so to show the Latin origin, sorry, to show the Latin derivation of it, or to that it has been derived from Latin language, we write it in italics. So italics में क्यों लिखते हैं? याद रखना क्यों लिखते हैं? To indicate its Latin origin. Okay. Now, as I've told you that this is binomial nomenclature, 2 components are there. One is a species, a specific epithet, and the other one is generic name. So ये दोनों ही words के बारे में अब हमारे से बात की जाएगी। सबसे पहला, that the first word represents genus. जो पहला word होगा, जो दो नाम में से, वो एक नाम के जो 2 parts है ना, उसमें से जो पहला part होगा वो जीनस का नाम होगा, और जो दूसरा पार्ट होगा वो स्पीशीज का नाम होगा बेटा, दैट इज स्पेसिफिक एपिथेट होगा, राइट।
उसके बाद अगर ये नेम को, इस बाइनोमियल नेम को हम मैनुअली लिख रहे हैं, इफ इट इज हैंड रिटन, तो इन दोनों को हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। और अगर आप इसको प्रिंट कर रहे हो तो आप इटैलिक्स में प्रिंट करोगे। ठीक है, अगर आप प्रिंट कर रहे हो तो इटैलिक्स में प्रिंट होगा, और अगर आप मैनुअली लिख रहे हो, दैट मीन्स हैंड रिटन है, तो यू हैव टू अंडरलाइन इट सेपरेटली। अभी मैं एग्जाम्पल लिखूंगी तो आपको समझ आ जाएगा। एंड अगेन, दोनों नेम में से जो पहला वाला है, दैट इज जो जेनेरिक नेम है, उसका फर्स्ट लेटर अल्फाबेट कैपिटल्स में लिखा जाएगा, और जो स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट अल्फाबेट है वो स्मॉल अल्फाबेट में ही लिखा जाएगा। ओके, दैट इज द फोर्थ थिंग। अब अगर मैं इसके एग्जाम्पल लिखूं आपके लिए, सो अगर मैं मैंगी फेरा ही लिखूं बेटा, मैंगी फेरा इंडिका, इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, मैंगी फेरा इंडिका। सो बिकॉज मैं अभी मैन्युअली लिख रही हूँ, सो देखो, सबसे पहला फर्स्ट वर्ड जेनेरिक नेम है, जीनस। दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट है। उसके बाद ये क्या बोलता है, दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन कर दो। अगर आपने मैनुअली लिखा है तो दोनों को सेपरेटली हमने अंडरलाइन कर दिया। तीसरी चीज ये बोल रहा है कि पहला जो जेनेरिक, जो पहला कंपोनेंट है जीनस का नाम, उस वो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से, और जो स्पीशीज का नाम है, जो स्पेसिफिक एपिथेट है, वो स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर्स। This is how it goes. Okay, so this is the example of your rules of binomial nomenclature. कई बार ऐसा भी होता है कि जिस साइंटिस्ट ने इसको ये इस नाम को डिस्कवर किया है, उसका नाम भी हम शॉर्ट फॉर्म में आगे लिख देते हैं। जैसे मैंगीफेरा इंडिका की अगर मैं बात करूं तो कैरोलस लीनियस ने ही बताया, तो उनके इस तरह से हम उनके नाम के आगे ये लिख देते हैं कि दैट इट रिप्रेजेंट्स कि किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया। आई होप यू हैव लाइक अंडरस्टूड दिस। If you have any problem regarding anything, just you can just comment down. I'll surely get back to you on this. But for that, you have to just go through the entire lecture, because one thing is related to other. So it may be possible कि आपको एक टाइम पे ना समझ आए तो कुछ कुछ देर बाद आपको समझ आ जाए। Just go through the lecture, go through the class. उसके बाद अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, please comment करिए। Okay. Now this nomenclature part has been completed, which is like as I've told you, it is very important. Nomenclature, rules, and the name of books, the name, the year in which those books are got published, everything. ओके, अब आते हैं हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट पे, दैट इज क्लासिफिकेशन। सो हमने नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा पढ़ लिया, लेकिन अगर मैं आपको एक बहुत सीक्रेट बात बताऊं तो वो ये है कि नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन के बिना हो ही नहीं सकता। सो टू डू नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि जब तक हम उसको अलग अलग कैटेगरीज में नहीं रखेंगे, जब तक हमें उसका स्पीशीज का नाम नहीं पता चलेगा, उसके जीनस का नाम नहीं पता चलेगा, तब तक कैसे आप नाम लिख दोगे? ठीक है, कैसे आप दोनों कंपोनेंट्स बना पाओगे? यू हैव टू नो द जीनस नेम एंड यू हैव टू नो द स्पेसिफिक स्पीशीज नेम, राइट? सो उसके लिए क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। सो क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन का ही थोड़ा अगर मैं बिगर पिक्चर में बात करूं, सो दैट इज टेक्सोनॉमी। ओके, so this is again a 1 mark question. What is taxonomy? Taxonomy is the branch of science that deals with the process and principles of क्लासिफिकेशन। ओके, ये क्लासिफिकेशन के प्रोसेस और उसकी प्रिंसिपल्स, किन प्रिंसिपल्स पे, किन रूल्स पे क्लासिफिकेशन होता है, उससे डील करती है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको बोलते हैं हम? कैरोलस लिनियस, बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू कि इन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया विद द क्लास वर्ड क्लासिफिकेशन, विद द थिंग टेक्सोनॉमी, एवरीथिंग वाज introduced by Carolus Linnaeus. Now we have the steps of taxonomy here. First is characterization, identification, classification, and then nomenclature. So मैं आपको ये एक एक लाइन में ये चीज बताना चाहती हूँ। कैरेक्टराइजेशन, उसके कैरेक्टर्स को समझना, राइट, कि वो क्या कैरेक्टर शो कर रहा है। फिर उस कैरेक्टर, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स के साथ में मैच करना, कि क्या ये मैच कर रहा है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन, कि ओ फाइन, दिस कैरेक्टर बिलोंग्स टू दैट कैटेगरी, दैट। फिर जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कैरेक्टर उस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो फिर आपको उस कैटेगरी में उठाकर उसको वहीं पे रख दोगे, दैट इज क्लासिफिकेशन। और जब सारी क्लासेस आपको मिल गई, आपको जीनस का नाम मिल गया, आपको स्पीशीज का नाम मिल गया, तो आप कर दोगे, सिंपल, राइट। से फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं, तो सबसे पहले हम उसके कैरेक्टर्स देखेंगे, कौन से स्कूल में है। ठीक है, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास है तो हम देखेंगे कौन कौन से स्कूल में, जो सिमिलर स्कूल्स के हैं, उनको एक साथ रखें।
फिर हम देखेंगे कौन सी क्लास के हैं, जो सिमिलर क्लास के उनको एक साथ रखें। सो दिस इज हाउ इट गोस, राइट। तो धीरे धीरे आप उनके अलग अलग बेसिस के मतलब अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे आप उनको क्लासिफाई करते जाते हैं। फाइन। फिर आप मेरे को बोलोगे कि मैम फिर से इम्पोर्टेंट बोल रही है, बट दिस इज इम्पोर्टेंट। व्हाट शुड आई डू? दिस इज इम्पोर्टेंट। सिस्टमेटिक्स, सिस्टमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे हम classification ही कर रहे हैं, but in a systemic manner. This is the science that deals with the systemic arrangement of taxa. Taxa is nothing, it's the plural word of taxon, which means, this is the singular word, taxon, which means a category, a rank, a group, ओके एनीथिंग। अगर मैं बात करूं आपका स्कूल का नाम, आपका क्लास का नाम, आपके सेक्शन का नाम, आपका रोल नंबर, तो ये अलग अलग कैटेगरीज हो गई ना, तो इन सबको मैं टेक्सॉन बोल सकती हूँ। ओके। सिस्टमैटिक्स बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया बाय कैरोलिस लीनियस ओनली। ओके, और उन्होंने अपने अपनी जो बुक थी उनकी एनिमल्स के बेसिस पे, सिस्टमा नेचुरे, वो उन्होंने यूज किया, उसमें उन्होंने ये चीज यूज किया। एंड द स्कोप ऑफ दिस सिस्टमैटिक्स, it increases, it was later enlarged to include identification, nomenclature and classification। तो धीरे धीरे ये इसका स्कोप भी बढ़ता रहा। एंड सिस्टमैटिक्स इट ऑल्सो टेक्स अकाउंट इनटू इवोल्यूशनरी, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फॉर योर नीट, राइट, that systematics takes into account evolutionary relationships between organism। हम सिर्फ उसकी मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी या फिर उसके कुछ बेसिक कैरेक्टर्स ही नहीं देख, हम ये भी देखेंगे कि क्या इनकी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री सेम है या अलग है। दैट इज द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अबाउट। हम ये देखते हैं कि क्या इनके एंसेस्टर सेम है या एंसेस्टर सेम नहीं है। ओके। Now let's start with the taxonomic hierarchy. So basically, what does this mean? Taxonomy हम समझ गए कि taxonomy क्या होता है। Taxonomy is the, that systemic arrangement of all the classes। जितनी भी कैटेगरीज की हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर मैं एक स्टूडेंट को क्लासिफाई करूंगी तो मैं उसका स्कूल नेम रखूंगी, फिर उसका क्लास रखूंगी कौन से क्लास में है, फिर उसके स्ट्रीम, अगर आप 11 से हो तो उसके स्ट्रीम, फिर स्ट्रीम से देन सेक्शन पे आ जाएंगे, फिर रोल नंबर पे आ जाएंगे, तो धीरे धीरे कैटेगरीज चेंज होती रहेंगी। तो वो जो सिस्टमिक अरेंजमेंट है कि सबसे पहले क्लास, फिर से छोटी क्लास, फिर उससे छोटी क्लास, दैट इज, वो पूरा प्लेसमेंट को हम बोलते हैं हिरार्की। Okay, taxonomic hierarchy, the systemic arrangement or the stepwise arrangement of all the categories of one particular living organism, that is known as taxonomic hierarchy। Okay, so here it is written that classification is not a single step process but involves the hierarchy of steps। That means it includes a systemic group of steps in which each step represents a particular rank or category, और इसी रैंक और कैटेगरी को हम बोलते हैं टेक्सॉन। ये आपके थर्ड स्टेटमेंट में ये चीज लिखी हुई है कि हर एक कैटेगरी को जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है हर स्टेप पे, उसे हम टेक्सॉन बोलते हैं। एंड टेक्सा इज द प्लूरल वर्ड फॉर टेक्सॉन ओनली। So this taxon is nothing, it is just that rank or the category that we are talking about। Now, ये जो पूरा arrangement है ना, इसमें जितना भी it's like जितनी भी ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है, इट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड ऑल द कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टेक्सोनॉमिक हियरार्की। सो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग नो, कि सारी कैटेगरीज को एक साथ रखना, उनको सिस्टमेटिकली अरेंज करना, दैट इज टेक्सोनॉमिक हियरार्की। नाउ लेट्स कम टू दैट ग्रुप। वो टेक्सोनॉमिक हियरार्की है क्या जिसकी हम बात करें, कौन कौन सी क्लासेस हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, right? So this is the chart, or this is the flow chart of your NCRT, this is given in your NCRT, right? And this is that flow chart that represents that all the basic, or the categories or taxon that are present in taxonomic hierarchy। So this will start with the species. This is the smallest one here. This is the smallest category. And step by step, species to genus, then genus to family, then family to order, order to class, then to phylum or division, and then at last kingdom। So kingdom becomes the highest rank or the highest category or highest taxon, whatever you can say। Right? अब मैं इससे रिलेटेड आपको एक
बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ कि जब हम स्मॉलेस्ट कैटेगरी से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं, जब हम हायर कैटेगरी से लोअर कैटेगरी तरफ आएंगे तो क्या चेंजेस आते हैं। सो व्हेन वी गो फ्रॉम हायर कैटेगरी टू द लोअर कैटेगरी, जब हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ जाएंगे बेटा, दैट मीन्स हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, राइट। तब हम ये देखने के लिए मिलेगा कि इसमें जो सिमिलैरिटीज हैं, जो सिमिलैरिटीज हैं कैटेगरीज के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर, दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। जैसे जैसे आप हायर रैंक से लोअर रैंक तक जाओगे, सिमिलैरिटीज बढ़ती जाएगी। और जब इसका ऑपोजिट करोगे आप, जब हम लोअर से हायर रैंक पर जाएंगे, मतलब जब हम स्पीशीज से किंगडम्स में जाएंगे, तो सिमिलैरिटीज कम होती रहेगी। एरो अप इंक्रीज होना, एरो डाउन डिक्रीज होना। सो जब हम असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे या जब हम कैटेगरी लोअर कैटेगरी से हायर कैटेगरी पे जाएंगे तो सिमिलैरिटीज कम होंगी, और जब हायर कैटेगरी से लोअर कैटेगरी तक आओगे तो सिमिलैरिटीज इंक्रीज होंगी। ओके, ना अब ये सारी कैटेगरीज, जितनी भी 7 कैटेगरीज हमने पढ़ी है, 1 2 3 4 5 6 7, इन सबको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके एग्जाम्पल्स। एंड उससे उसमें भी अगर मैं बात करूं, द वेरी फर्स्ट कैटेगरी दैट इज स्पीशीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीशीज की डेफिनेशन हमेशा आपको याद रखनी है, हमेशा। इसे किसी स्टैंडर्ड में नहीं, आगे भी जाएगा। ओके, सो स्पीशीज की अगर मैं बात करूं, सो ये नेचुरली, या आप बोल सकते हो ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। दिस इज द एक्चुअली नेचुरली एग्जिस्टेड रैंक जो नेचर में प्रेजेंट है। ओके, इसके ग्रुप को हमने बोला दैट स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो ये क्या बोल रहा है कि हम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रखकर स्पीशीज बोलते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, बाहर से देखने में सिमिलर हो, जिनकी बॉडी फंक्शन सिमिलर हो, प्लस वो जो भी इंटरब्रीड कर रहे हैं फ्रीली अमंग देमसेल्फ, और इंटरब्रीड करने के बाद जो ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं वो फर्टाइल है। इसका अगर अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, तो अगर काव और बुल इंटरब्रीड करते हैं तो उनके जो ऑफस्प्रिंग बनकर आएगा वो फर्टाइल होगा, जो ऑफस्प्रिंग बनकर आएगा वो फर्टाइल होगा। बट एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं मेल डोंकी, अगर मैं बात करूं मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स की, इनके इंटरब्रीडिंग के बाद एक ऑफस्प्रिंग बनता है जिसे हम म्यूल बोलते हैं, दैट इज इनफर्टाइल, दैट इज इनफर्टाइल। सो मतलब अगर दो ऑर्गेनिज्म के इंटरब्रीडिंग से फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बन रहा है, दैट मीन्स बोथ ऑफ दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म दे बिलोंग टू द सेम कैटेगरी और द सेम स्पीशी। और अगर इनफर्टाइल हो रहा है, जैसे डोंकी और हॉर्स, दे डू नॉट बिलोंग टू द सेम स्पीशीज। ओके, और इनकी फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होंगी स्पीशीज के बीच में, तभी एक ग्रुप में रखे जाएंगे। और आप एक स्पीशी ग्रुप को दूसरे स्पीशी के ग्रुप से बहुत आराम से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। अगर मैं इनके एग्जाम्पल की बात करूं, सो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा मैंगीफेरा इंडिका, राइट, मैंगीफेरा इंडिका। सो यहाँ पे जो सेकंड वर्ड है इंडिका, दिस इज स्पीशीज, राइट। सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरोसम, Solanum tuberosum, it is potato. Tuberosum is a species. Then we have third one, that is Homo sapiens. Let's take a very simple example. Homo sapiens, human beings. So sapiens here is a species. Then the fourth one, what you will say? What can we take? Okay, Panthera leo. Panthera leo. This is lion. So this leo word is here species. Okay, so these are the examples of species. ओके, नेक्स्ट अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर बढ़ जाऊं, सो जो जितनी भी सिमिलर स्पीशीज हैं, दे विल बी ग्रुप टुगेदर, द सिमिलर स्पीशीज विल ग्रुप टुगेदर in a somewhat bigger or a larger कैटेगरी और टेक्सॉन, दैट इज जीनस। सो जीनस क्या है बेटा? जीनस एक वो ग्रुप है जो अपने अंदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को रखता है। तो दो या दो से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज एक ग्रुप में रखी जाएंगी जिन्हें हम बोलते हैं जीनस। जैसे पोटैटो और ब्रिंजल, दे बोथ बिलोंग टू द डिफरेंट स्पीशीज, बट उन दोनों के कुछ कैरेक्टर सिमिलर हैं, जिसकी वजह से सॉरी, जिसकी वजह से उसको सेम जीनस में रखा है, एंड दैट इज सोलेना।
नाउ इस एग्जाम्पल से आप बहुत क्लियरली समझ सकते हो। पेंथेरा लियो दैट इज लायन, पेंथेरा पार्डस दैट इज लेपर्ड, इन पेंथेरा टिग्रिस दैट इज टाइगर। सो आप देख रहे हो इसमें लियो पार्डस टिग्रिस इन सब ये तो स्पीशीज के नाम हो गए, स्पेसिफिक एपिथेट हो गया, बट इनका जो फर्स्ट वर्ड है पेंथेरा 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 दे आर सेम, दैट मीन्स दे बिलोंग टू द सेम जीनस। सो लायन, टाइगर एंड लेपर्ड दे बिलोंग टू द सेम genus that is Panthera, right? Which differs from the other genus that is Felis, which consist cats. Okay. Now, अब आते हैं थोड़े और हायर कैटेगरी पे और थोड़े हायर टेक्सॉन पे, दैट इज फैमिली। फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीन्स। वैसे सेम वही चीज है कि छोटे छोटे जो ग्रुप्स को आप मिक्स करते रहो जो सिमिलर है उनको बड़ी बड़ी कैटेगरीज में रखते जाओ, राइट। सो फैमिली एक ऐसा ग्रुप है जिसमें क्लोजली रिलेटेड जीनस आते हैं बेटा, राइट। और अगर मैं बात करूं प्लांट्स की तो मेनली हम प्लांट्स को उनके वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेसिस पे सेम फैमिली में रखते हैं। जैसे सोलेनम जिसमें तो पोटैटो आता था, पिटूनिया एंड धतूरा, all these three different genus they belongs to the same family that is Solanaceae। और अभी जो हमने बात की पेंथेरा जिसमें लायन, टाइगर और लेपर्ड तीनों आते हैं, वो जीनस और कैट जीनस की जिसमें जो फैलिस है वो एक फैमिली में आता है। इसीलिए बचपन से बोलते आ रहे हैं टाइगर बिलोंग्स टू द कैट फैमिली, ये सुना होगा आपने, टाइगर बिलोंग्स टू द कैट फैमिली। व्हाई इज इट सो? बिकॉज इन दोनों के कुछ कैरेक्टर्स सिमिलर होते हैं, इसीलिए कैट की फैमिली दैट इज फेलिस और लायन की फैमिली टाइगर, लेपर्ड की फैमिली दैट इज सॉरी जीनस दैट इज पेंथेरा, इन सबको एक ही फैमिली में रखा गया दैट इज फेलिडे। ओके, देन नेक्स्ट कम टू द अदर हायर कैटेगरी दैट इज ऑर्डर। सेम वही चीज जो सिमिलर फैमिलीज है उनको एक ऑर्डर में रखा जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, इनके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस यू हैव टू मेमोराइज। पॉलीमोनियल्स इज अ ऑर्डर जिसमें दो क्लासेस जो सबसे बहुत ज्यादा फेमस क्लासेस हैं, फैमिलीज हैं सॉरी, दैट इज कॉन्वॉल्वुलेसी एंड सोलेनेसी। एंड कार्निवोरा, अगेन कार्निवोरा के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट फैमिलीज आती हैं, फैलिडे जिसमें आपके लायन, टाइगर, कैट, लेपर्ड ये सब आएगा, कैनिडे जिसमें डॉग्स आते हैं। ओके, इन दोनों फैमिलीज को साथ में रखा गया एक ऑर्डर में दैट इज कार्निवोर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग हैबिट, बिकॉज दे आर कार्निवोर्स इन नेचर। वो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स पे फीड करते हैं, दैट इज वाई दे आर कार्निवोर। ओके, ऑर्डर के बाद आता है नेक्स्ट हायर कैटेगरी हमारे पास दैट इज क्लास। क्लास का एक ही एग्जांपल आपको दिया हुआ है इसमें। इसमें क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर साथ में रखे जाएंगे एंड दैट इज मेमेलिया। मेमेलिया इज अ क्लास जिसमें सारे मैमल्स आते हैं और उसमें जो बहुत दो इंपॉर्टेंट या फेमस ऑर्डर है, प्राइमेटा जिसमें ह्यूमन बींग्स आते हैं, जिसमें ह्यूमन बींग्स आएंगे, कार्निवोरा जिसमें अभी आपने देखा जिसमें लायन, टाइगर, लेपर्ड, कैट, डॉग ये सब आ रहा है। ठीक है, तो इन सबको मिलाकर एक क्लास में रखा गया दैट इज मेमिलिया। वाई, क्यों रखा गया? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। एंड व्हाट आर दोस कैरेक्टर्स? प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ बॉडी हेयर, राइट, उनकी पूरी बॉडी पे हेयर होंगे। दूसरी चीज प्रेजेंस ऑफ memory glands, right? They are viviparous in nature. They will give birth to the young ones and then they will feed them through their memory glands and presence of body hair. These are the two important features और characters जिनके basis पे primata और carnivore दो अलग अलग orders को हमने एक class में रखा, that is okay। Now let's jump to the next higher category that is phylum। अब देखो इस रैंक पे, इस स्टेज पे आपको दो वर्ड्स देखने के लिए मिलते हैं, फाइलम और डिवीजन। फाइलम हम उन सारी क्लासेस के लिए यूज करते हैं जो एनिमल्स की हैं। सारी क्लासेस जो एनिमल्स की हैं उसमें जो सिमिलर्स हैं उन हम सबको उनको साथ में रखेंगे एंड देन दे विल बिलोंग टू द सेम फाइलम। बट जितनी भी प्लांट की क्लासेस हैं उन उन सबको हम कैटेगराइज करेंगे टू बी इन अ बिगर unit, that is division. So we'll use phylum word for animals, phylum word for animals and division word for plants। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कॉर्डेटा। ये आप अपने फोर्थ चैप्टर में भी पढ़ेंगे, इस यूनिट का फोर्थ चैप्टर, क्लास 11th ओनली ऑफ कोर्स, दैट इज एनिमल किंगडम। उसमें आपका लास्ट फाइलम है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में जो बहुत सारी क्लासेस हैं जिसमें आपके मैमल्स आते हैं, फिशेस आते हैं,
एम्फीबियंस आते हैं, बर्ड्स आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं। ये कुछ कैरेक्टर्स के, कुछ कॉमन कैरेक्टर्स के बेसिस पे इनको हमने एक फाइलम में रखा, दैट इज कॉर्डेटा। और इस फाइलम के नाम से पता चल रहा है कॉर्डेटा, दैट मीन्स दे हैव नोटोकॉर्ड। तो जितने भी क्लासेस के पास, जितने भी क्लासेस के मेंबर्स के पास नोटोकॉर्ड था और हॉलो, डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम था, ठीक है, डॉर्सल हॉरल न्यूरल सिस्टम एंड प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये दो फीचर्स जिन भी क्लासेस के मेंबर्स शो कर रहे थे उन सबको हमने एक कैटेगरी में रखा और उसको हमने नाम दे दिया कॉर्डेट। ओके, एंड सिमिलर डिवीजन, सिमिलर चीज अगर आप करते हो, सिमिलर कैटेगराइजेशन अगर आप करते हो प्लांट्स के लिए, देन इट विल बी नोन एज डिविजन्स। ओके, देन the highest rank or category or the last taxon, that is kingdom. किंगडम बेसिकली अगर मैं बात कर रही हूँ फाइलम्स की, तो ऑफ कोर्स मैं एनिमल्स की बात कर रही हूँ, सो दैट विल बी इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया। और मैं अगर सारे डिविजन्स की बात कर रही हूँ, तो दे विल बी कंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांटे, बिकॉज डिविजन्स आर, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डिविजन, दैट गोज विदाउट सेइंग कि हम यहाँ पे प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे दो ही किंगडम आपके पास आएंगे, एनिमेलिया एंड प्लांटे। अभी इस लेवल पे, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे और भी किंगडम्स हैं, मगर अभी मैं अगर एग्जाम्पल आपको दो किंगडम्स का, तो यहाँ पे दो मेन किंगडम्स आपके लिए दिए गए हैं, टू किंगडम क्लासिफिकेशन से, दैट इज एनिमेलिया एंड प्लांटे। एनिमेलिया कंसिस्ट ऑल द एनिमल्स एंड प्लांटे कंसिस्ट ऑल द plants. Okay, with this your chapter is completed, but there is something very important given in your NCERT at the end of this chapter, and that is this table. इस टेबल में बेटा आपको चार एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQ, 1 मार्क क्वेश्चन, और पूछ भी सकता है पूरा पूरा आपसे 2 नंबर में, ठीक है। जैसे चार एग्जाम्पल्स दिए हैं इसमें, मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो एंड वीट। चार एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, चारों के साथ चारों को अलग अलग कैटेगरीज के नाम दिए हुए हैं, उनकी स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, एवरीथिंग। किंगडम तो इजी है बताना, क्योंकि या तो प्लांट होगा या एनिमल होगा। सबसे पहले है मैन। इनका बायोलॉजिकल नेम होता है होमो सैपियंस, दैट मीन्स होमो यहाँ पे हो गया जीनस नेम और सैपियंस हो गया स्पीशीज नेम। फैमिली इनकी होमिनिडे एंड ऑर्डर प्राइमेटा, अभी आपने पढ़ा एग्जांपल्स में, एंड क्लास मैमेलिया एंड फाइलम कॉर्डेटा। ये तो आई थिंक बहुत इजी है याद करना, एंड इट इज इंपॉर्टेंट एज वेल, आपसे पूरा पूछ सकता है। राइट, राइट डाउन ऑल द कैटेगरीज नेम, और द इस तरह से पूछ सकता है, राइट डाउन द टेक्सोनोमिक हायरार्की। टेक्सोनोमिक हायरार्की फॉर मेन, या कुछ भी बोल सकता है, हाउस फ्लाई, मैंगो, बीच, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज हाउस फ्लाई, Musca domestica. So Musca becomes the genus name, Domestica becomes the species name, Nisidae is the family, Diptera order, Insecta class and Arthropoda, ये फिर से आप एनिमल किंगडम में पढ़ोगे, दैट इज द फाइलम, क्योंकि ये दोनों एनिमल्स थे तो इनके लिए हम यूज करेंगे फाइलम। ओके, एंड किंगडम विच, एनिमेलिया, एनिमेलिया किंगडम। ओके, मैंगो एंड वीट। मैंगो है Mango, Mangifera indica. Mangifera becomes the genus and species becomes the indica becomes the species. Anacardiaceae is the family. Sapindales is order. It belongs to the dicotyledonous category. So the class is dicotyledons. इसके दो cotyledon होंगे इसके seed के पास, और ये एंजियोस्पर्म होता है, मतलब इसमें seeds होंगी covered with the fruit hole. Okay. Then last is weed. Triticum, Stivum. Triticum is the genus. Stivum is a species. Poaceae family. Poales is order. Monocotyledonate, that means monocot seed होगा. Again angiosperm, क्योंकि इसके पास भी seed होगा, of course the monocotyledonate seed होगा, covered with the fruit wall, and these two belongs to the division because they are from plant. और ये किस kingdom से होंगे बेटा? Plantae kingdoms. This completes your table. And with this, your chapter is also complete. If you have any query, you can just comment down. I'll surely get back to you. Okay, just go through the chapter first. If you have any query, just comment it down. अगर आपको notes चाहिए तो भी आप comment down कर सकते हो, मैं ये पूरे written notes सारे explanation के साथ में आपको भेज दूंगी।